ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆ। ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 7:30 ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਚਿਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੂਰੋਂ ਲਾਗੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਆ। 8 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹੇਗਾ। 8-8:15 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਐਂਡ ਟੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਭੂਮੀ। ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ 11 ਵਜੇ ਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਭੋਪਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਭੋਪਾਲ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਸਪੀਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਸਟਲੀ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੀਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 5 ਸਾਥੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ठीक है जी। तो बाकी हम आप इंट्रोडक्शन के वाल जाते हैं। हमारे बीच में जो यहाँ के लिए प्रोग्राम वगैरह हमने जो तैयार किया था, खास तौर पर उसकी जो जिम्मेदारी थी सचिन जी को हमने दी हुई थी। तो हाँ जी सर प्लीज़ आगे आ जाइए। हाँ जी उनके मदर भी साथ में आए हैं, उनसे भी निवेदन है कि प्लीज़ वो भी आगे आ जाइए। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। जो पहला जत्था यहाँ पर आया था उसके लिए भी काफ़ी सहयोग उन्होंने किया था। और ये दूसरा जो जत्था था जो इसकी सारी आज की प्लानिंग वगैरह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रुकने का प्रबंध हो गया और ट्रांसपोर्ट का प्रबंध हो गया, घूमने का सारा टूर प्लान वगैरह सचिन जी ने सारा कुछ तैयार किया। तो यहाँ पे इंतजाम किया होता है। 1 बजे का हमारा ट्रेन का जो टाइम था, लेकिन 1 बजे से पहले जिन साथी की ड्यूटी लगाई गई थी उनका फ़ोन आना शुरू हो गया था कि भाई आप कहाँ पे पहुँचे हैं, आप आ जाइए, हम यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
तो ट्रेन खैर हमारी 2-2.5 घंटे लेट हो गई, 3-3:30 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे तो साथी यहाँ पे मौजूद थे। तो उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सचिन जी का। बाकी भी जो प्रोग्राम है उन्होंने सारा तैयार किया है। सर ये जो सभी साथी है पंजाब के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, मेन मोटिव जो है वो यही है कि भी अपनी विरासत के साथ जुड़ना। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे समाज के लिए इतना कुछ किया, जो अगर गिनाने जाए तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो कहने का मतलब जो है, जो बाबा साहब ने हमें जानवरों से जो इंसान बना दिया, शॉर्ट शब्दों में हम कह सकते हैं। तो ये सभी साथी उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ नतमस्तक होने के लिए आए हैं उनकी जन्मभूमि पर। और इसी के साथ कल का जो प्रोग्राम वगैरह है, आज रात को हमारी ट्रेन है जो भोपाल के लिए है। भोपाल में फिर जाने के बाद सांची स्तूप जो है वो साथ में हमने सभी ने देखने का प्रोग्राम बनाया है, खास तौर पर अपनी सभ्यता के साथ जुड़ने के लिए सभी साथी हैं। तो इस बार तो खैर सभी जो है जो जेंट्स आए हुए हैं, आने वाले दिनों में ये विद फैमिली आएंगे, परिवारों के साथ आएंगे, बच्चे और साथ में औरतें भी आएंगी। तो बहुत बहुत आभार मैं आपका व्यक्त करता हुआ। तो सबसे पहले मैं सचिन जी से कोई निवेदन करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ मंच पर आए और आज के एक तो टूर प्रोग्राम वगैरह जो है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और बाकी कुछ शब्द जो है वो आप ज़रूर सभी के सामने रखें। सचिन जी प्लीज़। आज जो पंजाब से जत्था चल के आए यहाँ पर बाबा साहब की जन्मभूमि पे, और आप सबने जो हमको इतना अच्छा सहयोग करा यहाँ पर आने का। एक्चुअली मेरे पिताजी का ये सपना था कि जब भी बाबा साहब की जन्मभूमि पर आए लोग तो कम से कम ये वाचनालय पे आए। तो उनकी पहली पुण्यतिथि पर पहला जत्था आया था और वो मेरे को एकदम आश्चर्य लगा था कि ये कैसे हो गया। मतलब ये प्रकृति का एक वो रहता है कि कहीं ना कहीं किसी की आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाती है और उसके बाद वो बात अमल भी हो जाती है। तो पहली बार जब जत्था आया तो मतलब मेरे को इतनी खुशी थी कि मैं बता नहीं सकता था। और उन सभी साथियों का मतलब मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस वाचनालय को आने का, हमको सेवा करने का हमको साथ दिया। और उसके साथ यहाँ से जब जन्मभूमि गए उन्होंने पूरा घूमा, उन्होंने जन्मभूमि का सबने माथा टेका और उस भावना से कि हम बाबा साहब के कारवां को कभी बंद नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारे साथी, हमारे को हमें दूसरों की दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, हमारी दुश्मन हमारे साथ ही रहते हैं। पर क्या होता है कि एक बीज बोने से जब फल आते हैं उस पेड़ बनने के बाद, तो वो फल का कहीं ना कहीं हर आदमी उसका स्वाद लेना चाहता है। तो ऐसे ही होगा जब अपना बाबा साहब का जब सपना पूरा होगा, जब दिल्ली में हमारा राज होगा, उस दिन जब सरकार हमारी होगी और हम काम करेंगे तो सारे लोग हमारे जो साथी दुश्मन भी रहेंगे वो भी हमारा साथ देंगे। और मेरा निवेदन है ये कि जिस तरीके से हमारा कारवां चल रहा है, हम निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। हमारे स्वार्थ के लिए अगर हम करेंगे या हम अपना सोचेंगे ना, तो कभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बाबा साहब भी अपने स्वार्थ के लिए अगर रहते, 1% भी रहते, 99 नहीं, अगर 1% भी रहते ना, तो ये समाज आज सही नहीं, सम्मिलित नहीं होता, संविधान नहीं बन पाता। उन्होंने 100% हमारे लिए समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन। उनके बच्चों को नहीं देखा। आज हम हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा नहीं सोच नहीं सकते, उनके साथ तो घटा है। तो हम कैसे इस चीज़ को मान लें? हमको भी तो थोड़ा सा उनके लिए समर्पित होना पड़ेगा। और बाबा साहब के विचारों को पूरा नहीं लेके, क्योंकि पूरे तो बाबा साहब हम हो नहीं सकते, पर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आगे चले कि जो कहीं ना कहीं हम समाज को कुछ दे सके, वो योगदान दे सके, वो शिक्षा दे सके, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर मेरा भी एक मानना है कि शिक्षा ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा तो उसको आप फोर्सफुली पढ़ाने की ये जिम्मेदारी उसको आप मत करिएगा कि मैं पीता हूँ तो मैं उसको फोर्सफुली पढ़ाऊँ। शायद वो किसी और चीज़ के लिए बना है भाई, ऐसा नहीं कि वो उसी चीज़ के लिए बना होगा, किसी और चीज़ के लिए बना होगा, तो उसको भी उसमें प्रोत्साहन दिया जाए। ये मेरा निवेदन है। और दूसरी चीज़, आप सब लोग जो आए, मेरे को यही चीज़ चिंता थी कि आप सब लोगों का समय सही टाइम पे आएंगे नहीं आएंगे, आराम करने के लिए आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कल से बड़ा परेशान हो रहा था कि मैं क्या करूँ। कल इधर से उधर भागा दौड़ी ये वो चली रही थी। फिर भैया का फ़ोन आया कि बोले हम 1 बजे तक पहुँचेंगे। फिर क्या है कि अपनी सरकारी ट्रेनें हैं तो वो टाइम पे तो पहुँचती नहीं, तो वैसे भी आपको समय लगी गया 3.5-2 घंटे आपका लेट हो गया। और उसके बाद फिर जब आप यहाँ पहुँचे 3:30 बजे, तो मैंने जिनको बोला था, हमारे गणेश सिंगड़े जी, वो हमारे यहाँ के सचिव भी है और ये पूरा वाचनालय उनकी ही निगरानी में रहता, वही संभालते हैं ज़्यादातर। और उन्होंने जब आपको फ़ोन लगा लिया था, शायद से मेरा ऐसा मानना था, बात हो गई थी और वो फिर 3:30 बजे भी आकर आपको, मेरे ख्याल से अगर कोई तकलीफ होगी आज मतलब पूरे दिन में, तो उसके लिए मैं पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। पर आप सबको मैं मतलब ये करूँगा कि मैं जितना भी हो सके, मेरा
प्रयास रहेगा कि आपके लिए जो अच्छा हो सके वो मैं सबसे अच्छा करूँ। और आप सभी को मेरे को इतना ही कहना है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सबका मैं बहुत आभार मानता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, पर आप सब आज अपने दिन को एक बाबा साहब के नाम समर्पित करने आए हैं, तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जय भीम, जय भीम। विशेष तौर पर हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे हमें जो सुविधा ये सारी प्रोवाइड करवाई, किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जैसे आपने सर की ड्यूटी लगाई हुई थी, उनका मैंने बताया कि कॉल आ गया, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे उस समय। तो बाद में उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे रुकने का सब कुछ ठीक है, हमें बहुत अच्छा। साथियों ने जो मैं आराम करना था आराम कर लिया, नहा लिया, तैयार हो गए, रेडी हो गए। बाकी का जो प्रोग्राम टूर प्लान आपने किया हुआ है उसी मुताबिक हम आगे चलेंगे। और उसके बाद दोपहर के बाद जो है बाबा साहब की जो जन्मभूमि है वहाँ पर कुछ विचार चर्चा वगैरह करेंगे और वहाँ पे बाबा साहब की जन्मभूमि पे नतमस्तक होंगे सभी साथी। तो साथ हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे साथियों ऐसा कि सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन देनी है। नाम आप कौन कौन कहाँ से हैं, या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, या फिर आज के प्रोग्राम के बारे में सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मेरा निवेदन है। इससे कम भी शब्द आप रख सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, जसवीर बेगमपुरी जी से शुरुआत करते हैं। अगला नाम ही नारी बोल रहे हो। उनके बाद अमनदीप जी। अभी साथियों, मैं जसवीर बेगमपुर मेरा पिंड है, नवा शहर जिले में पंजाब तो। और मेरा किताबों का साहित्यिक किताबों का मेडिकरी साहित्य जिहड़ा सारा मुकम्मल वो मैं उसका काम करता तो घर घर तक पहुँचाने का मेरा है। थैंक यू। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुधाय। मेरा नाम अमनदीप सिद्धू है, मैं पंजाब हुशियारपुर से हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। पिछले हमने 5 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के लिए जो उन्होंने हमारे लिए हिस्ट्री निकाला है, जो दिया था उन्होंने इतिहास लिखकर, उसको निकालने का हमने बहुत सारा प्रयास किया है। जैसे हर रोज़ बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का उन्होंने जितने भी हमारे लिए जो भाषण दिए हैं, जो उन्होंने हमारे लिए काम किए हैं, वो सारे के सारे हमने निकाले हैं। उसको सोशल मीडिया पे छोटा छोटा कर डाला भी हुआ है। ब्रीफ में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह मान्यवर साहब कांशीराम ने 1978 से लेकर 1978 से 2003 तक का हमने काफ़ी हिस्ट्री निकाला है। वो सभी साथियों से आगे शेयर करेंगे। और बीच में भी किया है, वो भी पूरे साल में दिया है। तो हमारा एक ही प्रयास है कि बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं सीख सकते। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। तो आगे सभी साथियों से मिलकर उसको पूरे देशव्यापी आंदोलन में उसको लेके जाएंगे और पूरे संसार में पहुँचाएंगे। जो बहुत सारे साथी होते हैं जो पुस्तकें कम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको पढ़कर अपने महापुरुषों को याद कर सकते हैं। हम इसी तरह पंजाब में कैडर कैंप वगैरह आयोजित करते रहते हैं। और दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इकोनॉमिक पक्ष पे ऊपर एंगल के बात किया है उन्होंने, कि हमारे लिए जैसे हमने सामाजिक संगठन में योगदान डालना है, सामाजिक मूवमेंट को चलाना है, दूसरी तरफ उन्होंने आर्थिक मूवमेंट को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया था। उसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जितने भी नौजवान युवा बेरोज़गार है उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम पंजाब में काम कर रहे हैं। तो मेरी सभी जितने भी नौजवान युवा साथी हमारे साथ आए हैं, तो उनको भी नम्रता से बेनती है कि उस एंगल की, उस तरफ की ओर आगे बढ़े, ताकि जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को जहां हम सामाजिक एंगल पे योगदान पा रहे हैं, तो आर्थिक एंगल पे भी हम योगदान पाएँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुधाय। मेरा नाम कुलदीप सिंह हैप्पी जी, पंजाब जिला बरनाला। मैं अंबेडकर और बुद्ध की धरती को समझने की कोशिश कर रहा। जय भीम, जय भारत जी। सारे साथियों ਨੂੰ नमो बुधाय, जय भीम। साथियों, मेरा नाम नरवैर सिंह, मेरा जो मेरा गांव है जो वो हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में कलूरी फंगुड़िया पड़ता है। लेकिन मैं 35 साल से रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, रेल पोस्ट फैक्ट्री कपूरथला से। वहाँ से अब मैं रिटायर हो गया हूँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अहदे से। तो मेरी वो कर्म भूमि है, मैंने अपना रहायश भी वहीं बना ली है। वहाँ हमने श्री रविदास सेवक सभा पहले बनाई, उसके फाउंडर मेंबर थे। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर सोसाइटी, ऑल इंडिया SC/ST, रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इन सब के शुरुआती मेंबर थे हम लोग। तो अभी हम डॉक्टर BR अम्बेडकर सोसाइटी वहाँ हम चला रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा सबसे, और रल मिल के सब लोग बाबा साहब के
ये जो संदेश है, जो कारमा है, उनका आगे लेके जाइए, जो उनकी इच्छा थी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कपिल देव है जी, मैं पिंड खुर्ला किंगरा जिला जलंधर से आ रहा हूँ और हम डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी खुर्ला किंगरा के मेंबर हैं, जो कि अमर मिलिट्री चेयरमैन है उसके। तो जो भी सोशल काम है, एजुकेशन के सभी काम गांव के और आसपास के गांव के कर रहे हैं, वो सभी बहुत बढ़िया बाबा साहब की नक्श कदम से चल के कर रहे हैं। मेरा नाम जसवीर कुमार और मैं गांव खुर्ला किंगरा से रहने वाला हूं, जलंधर से। और मैं एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से अभी जुड़ा हूं। पहले भी मैं बाबा साहब की विचारधाराओं पर चलता हूँ शुरू से। और आप सबको बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत कुछ सीखने के लिए और बहुत कुछ साथ लेकर जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं शशि कुमार खुर्ला किंगरा जलंधर तो असी अमन में इटली वाले जी साडे जी संस्था आ खुर्ला किंगरा जलंधर में डॉक्टर BR अंबेडकर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी उन्होंने साडे होए सानू उन्होंने अपने नक्शे कदम से चलाया कि असी तीसरी बार दूसरी बार इतने महोत्सवी उन्होंने सदका इतने पहुँचे हैं। एक बार उधर गए से असी नागपुर दीक्षा भूमि। तो असी बहुत सारिया जिन्हें भी बाबा साहब के बुद्धा जी के इतिहासिक स्थान है सभी पर नमस्तक होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं और कंटिन्यू असी ये संस्था के नाल चलते रहेंगे। और सब का ऐसे जोड़े मेरे वीर सचिन जी आ तहे दिल नाल धन्यवाद करते हैं कि हर साल साड़ी पूरी संस्था की रहन सहन की और भी इतने बहुत बड़े सुचजे ढंग के नाल साडी इत्थे हेल्प करते हैं। सब तो इन्हों का सब तो तहे धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सारे साथियों जय भीम, जय भारत। मैं योगराज पिंड खुर्ला किंगरा जलंधर डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर। जय भीम। हुशियारपुर से आया हूँ, मेरा नाम हरदीप सिंह है। जय जय भीम, जय भारत। जय भीम, मेरा नाम सुनील, मैं जयदेवाली जलंधर पंजाब से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नौजवान सभा कमेटी जयदेवाली उनमें मैं प्रेस करता रहा मेंबर। थैंक यू। नमो। जय भीम साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं 8वीं जमात का विद्यार्थी हाँ। मेरा नाम हरभजन, मैं जलंधर तो बिलोंग करता तो मेरा काम अंबेडकरी साहित दलित साहित से होर पुस्तक कल्चर प्रमोट करना है। तो मेरा पूरा परिवार इस काम में मेरा साथ दे रहा है। सारा जय भीम, जय भारत। सभी मिशनरी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम रजिंदर कुमार जस्सर, मैं आबादपुरा जलंधर तो हूँ। मैं RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक बात कही जाती है कि इन्होंने RPI ज्वाइन की है, लेकिन मैंने RPI ज्वाइन नहीं की। मेरा तो जन्म RPI में हुआ है, अब भी मैं RPI में हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा करना चाहता हूँ, हर जन जन तक उनका मैसेज चाहता हूँ। और जो कार्य हमारे अमर मिहिर जी उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा है। बाबा साहब की सोच को एक आगे लेकर जाने वाला है। मैं आने वाले अपने समाज के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसी रास्ते पर चलना है ताकि हमें रोशनी की ओर जाना है। जय भीम। साथियों जी जय भीम, नमो बधाई मेरे वालों जी। मेरा नाम करणदीप है। जिस तरह कि मेरे फादर साहब रुपन जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਟਰਸਟ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ मिशन ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सत्कारयोग साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मास्टर नरेंद्र बेगमपुरी। सपना है कि
जीवन इन महापुरुषों के लेखे लग जाए इतना ही काफ़ी है। जय भीम। मान्यवर सचिन जी, सबको साथियों को जय भीम जय भारत। मेरा नाम सोहन सिंह है, सोहन सिंह सुन्नी, और मैं गढ़शहर का रहने वाला हूँ। गढ़शहर के पास मेरा गाँव है। 1980 में मैंने बाउंड्री ज्वाइन किया, 1980 में। 1980 से 78 से लगातार इस मिशन से जुड़ा हूँ। 1992 में 1996 में डॉक्टर BR अम्बेडकर मिशन स्टडी एम्प्लॉइज बनाई थी, वही आजकल गढ़ क्षेत्र में काम कर रही है। पहले कोटपुरी गांव है, वहाँ बनाई थी, वहाँ से हटकर इधर आ गया तो आजकल वो अच्छी तरह से काम कर रही है। गढ़ क्षेत्र में एक भवन भी है, अम्बेडकर भवन बनाया है, वही जो सोसाइटी है वही काम कर रही है। और 4 किताबें लिखी मैंने, 24 नाटक लिखे हैं, बाबा साहब के बारे में काफ़ी नाटक लिखे हैं। और इसके बाद एक केडर कैंप लगाता हूँ गाँव में, शौक़ है गाँव में जाने का। सो आज बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और सारे साथियों से मिलकर अच्छा लगा। मैं समझता हूँ हम विरासत जोड़ने के लिए आए हैं, एक रोशनी की तरफ आए हैं। मैं जब पहली बार बाबा साहब का नाम सुना तो ज़्यादा पता नहीं था, धीरे धीरे पढ़ा तो लगा कि सचमुच एक रोशनी है जो महाराष्ट्र में पैदा हुई, जन्म लिया, और उसी जन्मभूमि को नतमस्तक होने के लिए मैं आज यहाँ पर रहा हूँ। सर साथियों को बहुत ही मैं धन्यवादी हूँ उनका, जिंदर जी का और आपका, सभी को जय भीम जय भारत। जय भीम जी। मैं कुलविंदर कुमार महमदपुर आदमपुर जलंधर तो इतने आया जी। मैं बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के विचारधारा समझने वास्ते उन्होंने जन्मभूमि से आया। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम बलबीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर। मैं पहले जश्न में यहाँ आया था और मैं सचिन जी से हमारा मुलाकात हुआ था। ये जत्था बाबा साहब और बुद्धा जी के सत्रों पर लेके जाने का हम लोगों का एक ही मकसद है कि हमारा समाज जो है वो परंपरागत बेकार गलत नीतियों को, रीतियों रिवाज को छोड़कर अपने सही इतिहास की ओर जुड़े, ताकि हम लोग अपने समाज में जो सही से इक्वलिटी ला सकें और सही से समाज का जो सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से चल सके। जय भीम जय भारत। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मेरा नाम सतविंदर मदारा है। गांव मेरा सरमस्तपुर है जलंधर में, लेकिन मैं जलंधर में रहता हूं बादपुरे में। और मैं काफ़ी साल कनाडा में रहा हूं, लेकिन पिछले 2 साल से मैं वापस इंडिया शिफ्ट होके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू इधर बाबा साहब के बारे में प्रचार भी करता हूं। और कोशिश में हूं कि जो बाबा साहब का और जो कांशीराम साहब का सपना है कि हमारी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना, तो उसी प्रयास में हम लोगों को, खासकर युवाओं को जागरूक करने में लगे हैं। और इस स्थान पे महू पे पिछले साल आने का सोचा था, लेकिन लेट पता चला, तो मेरा मन था। बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बार शामिल हुआ हूँ। और अमर महेश जी का और वरिंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सारा ग्रुप ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि यहाँ हमें रहने का आप लोगों ने हेल्प किया। तो सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं जिला जलंधर। जय भीम जय भारत। मेरा नाम मनोज कुमार, वाला जिला जलंधर। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को समझने की कोशिश कर कारजोग साथियों को मेरे वालों जय भीम जय भारत। मेरा नाम जसवीर कुमार, मैं पंजाब जिला खुले किंगरे का रहने वाला हाँ। मैं पहली बार इस इतिहासिक जत्थे में आया हाँ। जय भीम जय भारत। मैं आपके जलंधर पिंड मलको तो मलको के ऐसे जत्थे थे। जय भीम जय भारत। सारे साथियों जय भीम जी। मैं बूटा मंडी जलंधर का रहने वाला, मेरा नाम मोनिका है। सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम नमो बुद्धा। मैं सब तो पहला अमर महेश जी साडे भाजी ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ
ਤੇ ਸੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨੀ ਸਭਾ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਮਾਹੀ, ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਸੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ। तो मैं इस बाबा साहब के मिशन में साहब कांशीराम से प्रभावित होकर बचपन में वो हमारे यहाँ नाटक किया जाता था नया चिराग नई रोशनी, तो उसको जब देखा तो तभी से जो लगन लगी हुई है इस मिशन में है हम। लेकिन उसके साथ साथ एकता कला मंचल साड़ा कोरियोग्राफी की टीम है हमारी, हम उसके जरिए भी लोगों में जो जन जागृति का काम करते रहते हैं। तो मेरा जो असल जो मैं दिल से चाहता हूँ, मेरे को शायद भावनाओं से जो भरा है कुदरत ने, वो ये है कि मैं दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है मैं उस पर काम करता हूँ। जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है पैसे की कमी। तो उस पर मैंने मिशन AAA आर्थिक आज़ादी आंदोलन के तहत मैं लगा हुआ हूँ। उसमें आपको मैं जो है आज़ादी प्राप्त करूँगा ही करूँगा। जो भी मेरे साथ दोस्त इस मिशन में आएंगे वो सभी को मैं जो आज़ादी प्राप्त करा कर रहूँगा, आर्थिक आज़ादी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। अगर कहते हैं सियाने जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सियाने, अगर पैसा होगा तो सब कुछ होगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अमर महेश जी का धन्यवाद करूँगा, सरवना का सचिन जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने आज जो हमारा जो एक ड्रीम था बाबा साहब की जन्मभूमि में आना, उसको पूरा करने में हमारी मदद की। तो सभी का धन्यवाद। जय भीम जय भारत। थैंक यू। जय भीम जय भारत। नमो बुधाई। मेरा नाम अरुण है, मैं जलंधर सिटी का रहने वाला हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जय भीम जय भारत। मैं ज्योति प्रकाश पिंड जैतेवाली जलंधर तो सतगुरु डॉक्टर BR अंबेडकर नौजवान सभा का मैं चेयरमैन है जी, उत्थे सेवा में डॉक्टर था। तो इतने आप नतमस्तक होना तो मेरे साहब के सोच में सलाम है। जय भीम जय भीम जय भारत। मैं रामकृष्ण पंजाब जलंधर जैतेवाली से यहाँ है, तो आप सभी को जय भीम जय भारत। साथियों, मैं वरिंदर कुमार जलंधर पंजाब से ऑल इंडिया समता सैनिक दल का कार्यकर्ता हूँ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैं मेंबर भी हूँ, और उसके अलावा नवचेतना पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से एक छोटा सा प्रकाशन भी चलाता हूँ। सो साथियों, ये तो हुई हम सबकी इंट्रोडक्शन वगैरह, सारा प्रोग्राम वगैरह। आगे का जैसे मैंने कि आपको बताया है कि यहाँ पर कुछ जगह जैसे डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी हुआ, उसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो एक चिड़ियाघर है, उसके अलावा जो एक पैलेस है, तो म्यूज़ियम है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम दोपहर के बाद जो है जो बाबा साहब की जन्मभूमि है वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पर ज़्यादा समय हम वहीं पे बिताएंगे, कुछ विचार चर्चा भी वहाँ पे चलेगी। और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वापस यहीं से इंदौर स्टेशन से हमारी वापसी है। रात को 10 बजे के करीब स्टेशन पे पहुंचना है, और सुबह 6 बजे के करीब भोपाल ट्रेन पहुंचेगी। आगे का प्रोग्राम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन आज का जो है सभी साथियों ने डिसिप्लिन में रहना है। खास तौर पर जो ID कार्ड वगैरह दिए गए हैं सभी को वो पहन के चलने हैं, और बाबा साहब के जो बैच है वो सभी के पास है, वो लगा के हमने चलना है। जिस जगह पे जाना है उसके लिए जितना समय दिया जाता है हमने उतना समय ही वहाँ पे बिताना है। उसी समय में बिताने के बाद वापस आना है। किसी भी साथी ने कहीं और दूर आने जाने के लिए बिना पूछे कहीं नहीं जाना। फिलहाल जितना समय दिया उसी में जाने के बाद, बिताने के बाद आगे हमने चलना है। यहाँ पर अब सभी साथी नाश्ता करेंगे, नाश्ते का इंतजाम वगैरह है, नाश्ता करेंगे। नाश्ता होने के बाद 9 बजे यहाँ पे बस आ जाएगी। ठीक 9 बजे से 9 बजे यहीं पे सभी साथियों ने रहना। अब बाहर किसी ने घूमने नहीं जाना। 9 बजे बस आ जाएगी, सभी साथी बस में बैठ के आगे के जो टूर प्लान है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। फिर अपना जो प्रोग्राम है ये आज यहीं से समाप्त करके आगे चलेंगे। अमर महेश जी जिन्होंने ये प्रोग्राम सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिनकी देख रेख में जो सारा कुछ चल रहा है, जो उनकी इस प्रोग्राम की अगुवाई कर रहे हैं, वो विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी सचिन जी जिन्होंने यहाँ पे प्रबंध किया, अंत में उनका, उनके परिवार का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे का प्रोग्राम हम आगे शेयर करेंगे। ठीक 10 बजे यहाँ से, सॉरी ठीक 9 बजे बस खड़ी होगी तो हमने निकलना है। उससे पहले नाश्ते का इंतजाम अभी 5-10 मिनट में हो रहा है। ठीक है जी।
राय जब मन अनमोल और हृदय हो डावाडोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का ताप उठे, जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का ताप उठे, हिंसा की जो आग उठे, मानव से पशु जाग उठे, ऊपर से मुस्काते बोल भीतर जर ये रहे गोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। सब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया नहीं जब दुनिया से, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे बोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन धन को व्याकुल मन का अंधियारा, तेरी एक झलक को पाकर चमक उठे ये जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा प्यार पले, दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा प्यार पले, सुख शांति की छाया में जनमण गण का प्यार पले। भारत में भगवान बुद्ध का घर घर गूंजे मंत्र अमोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। थैंक यू।